you. Today we are going to discuss the second part of the human eye and the color forward for class 10 NCERT biology chapter number 11. So in the last video we have discussed about the structure of human eye and a little bit about prism refraction. In this chapter again we are going to discuss some more about the refraction through a prism and some more natural phenomena like the formation of rainbow and the color of sky and the sunrises with the pink color. That all we will discuss today. Okay, so let's start. So first thing is dispersion of white light through a prism. जब white light किसी प्रिज्म से पास होती है सो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है. ये जो 7 कलर्स हैं इनका एक सीक्वेंस होता है और ये सीक्वेंस यहाँ पे दिखाया है जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड द वायलेट. These colors are in this sequence. So this sequence is very important. With this small tip you can learn these easily. The word frames here is Vibgyor. Vibgyor, Vibgyor. So you get the sequence of the colors and this type of questions may be there in the exam. Got it? So when white light passes through a prism, it gets a spectrum, and under this spectrum the light disperses into 7 colors, and these 7 colors if again joined together, again they will be forming a white light. For example, just see here in the next slide, recombination of a spectrum of white light. When a white light passes through a prism, we get a spectrum. If now we allow this spectrum to pass through again through a prism, then we will get white light at the end. So it shows that the light is made of 7 colors. Got it? Now the natural phenomena based on this is the rainbow. Let us discuss about the rainbow. Rainbow is a natural spectrum which is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere after a rain shower. बरसात के बाद में जब एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं, जब उन वाटर ड्रॉपलेट्स से लाइट पास होती है, सनलाइट पास होती है, तो वो प्रिज्म के थ्रू जैसे पास होती है उसी टाइप से बिहेव करती है. These water droplets act as small prism. ये स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करती हैं. The incident sunlight with suitable angle of incident is refracted, dispersed, internally reflected, and finally refracted out by the raindrops. So this we will understand through a diagram in the next slide. Due to the dispersion and internal refraction, you just keep in mind and you should learn why this is happening. Due to the dispersion and the internal reflection, different colors reach the eye of the observer. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. Yes, रेनबो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है. सो किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है उसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे. यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो. तो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू ए रेन ड्रॉप, तो यहाँ पे इन टोटल इंटरनल डिस्पर्सन होगा यहाँ पर, और यहाँ से डिस्पर्सन होकर रिफ्रैक्शन होकर
लाइट है वो यहाँ से हमें आती हुई फील होगी, और यहाँ से आती हुई फील होने के साथ साथ ये कलर्स में भी डिवाइड हो जाएगी, और ये कलर्स ही हमें आगे अपोजिट डायरेक्शन में हमें 7 कलर्स के रूप में, रेनबो के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, इधर इस साइड में। सो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ एक है, जो डिग्री है, एंगल ऑफ 41 डिग्री, देन 43 डिग्री, ये जो एंगल्स बनते हैं ये 41 से 43 डिग्री के बीच में बनते हैं। 41 जो एंगल है वो बनेगा वायलेट कलर का, और 43 जो बनेगा वो रेड कलर का बनेगा। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल है आपके रेनबो का, ये रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें जो वायलेट कलर और रेड कलर के बीच का जो एंगल डिफरेंस है वो that is maximum up to 2 degree centigrade, 2 degree only, sorry, centigrade not. Now here atmospheric refraction, let's discuss about it. Refraction of light by Earth's atmosphere is called atmospheric refraction, and due to this we are observing many phenomena in our daily life. First thing, the flickering of objects above a fire. हम जब फायर जलाते हैं तो फायर के अपर साइड की जो एरिया है उसके दूसरी साइड में अगर हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स हमें फ्लिकरिंग करते हुए फील होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न है कि टेम्परेचर, जो एयर जो है जो इस फायर के ऊपर है उसका टेम्परेचर इसका रीज़न बनता है। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। The apparent random wavering of flickering of objects can be seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire. The air just above the fire becomes hotter. जो इस एयर फायर के जस्ट अबव वाली जो एयर है वो कैसी हो जाती है? गर्म हो जाएगी। Then the further up, जो अपर साइड की जो एयर लेयर है उनसे ज़्यादा गर्म हो जाती है। The hotter air is lighter than the cooler air above it. ये हम सबको पता ही है कि जो ज़्यादा गर्म एयर है वो लाइट होगी, और जो कूलर है या थोड़ा ठंडी एयर है वो थोड़ी हैवी रहेगी। एंड हैज़ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसलिए इनके बीच में क्या एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगी, स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। जो कूल एयर होती है उससे थोड़ा सा कम इसकी रिफ्रैक्टिव एंगल बनेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा इसका। सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम आर नॉट स्टेशनरी, देखो ध्यान दीजिए, फिजिकल कंडीशन जो है रिफ्रैक्टिंग मीडियम जैसे एयर है ना, तो एयर ये कोई फिक्स नहीं है कि एक जगह रुकी हुई है, मूव कर रही है। सो दिस इज स्टेशनरी, दैट इज नॉट स्टेशनरी, सॉरी, दैट इज नॉट स्टेशनरी। द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो पीछे की तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट, ये क्या करेंगे? फ्लक्चुएट करेंगे। दिस वेवरिंग इज देयरफॉर ड्यू टू एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑन ए स्मॉल स्केल इन द लोकल एनवायरनमेंट। ये थोड़ा है, यहाँ पे थोड़ी सी आग जलाई हमने, इसलिए इसका जो लेवल है वो भी छोटा होता है, थोड़ा होता है, लेकिन अगर ये बड़े लार्ज स्केल पर हो तो इसका इफेक्ट भी बड़े स्केल पे हमें दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी इसी पे डिपेंड कर रहा है। जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनके बीच का जो टेम्परेचर है वो उसमें डिफरेंस होता है, उनकी जो डेंसिटी है उसमें डिफरेंस होता है, और इसी वजह से लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या एक एयर लेयर से दूसरी लेयर में एंटर करती है तो उनके बीच का जो डेंसिटी का जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो लाइट रे है उसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन से होता है। द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। स्टार से जो लाइट आ रही है, जो लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंच रही है, उस स्टार लाइट की रे की पहुंचने की या उसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होनी है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन ए मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये कब होता है?
जब मीडियम की जो थिकनेस है या उसको कहें डेंसिटी है वो जब चेंज होगी तब ये ज़्यादा अकर होता है। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो एटमॉस्फेयर है वो स्टार की जो लाइट है उसको नॉर्मल की तरफ क्या कर देता है, बेंड कर देता है। द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन, इसलिए स्टार की जो लाइट आ रही है उसकी एक्चुअल पोजीशन से इसकी जो पोजीशन है वो हमें डिफरेंट दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है लेकिन हमें जो स्टार दिखाई देता है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर, ये देखो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ना, देन इट्स एक्चुअल पोजिशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजन, जब हॉरिजन के थ्रू से हम नजदीक से हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा अपर साइड में दिखाई देता है। दिस अपेरेंट पोजीशन इज नॉट स्टेशनरी, और ये जो अपेरेंट पोजीशन है ये भी स्टेशनरी नहीं है, बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली, परंतु क्या करती है थोड़ा थोड़ा चेंज होती रहती है। सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, और ये सब क्यों है, क्योंकि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक्चुअली में चेंजिंग हो रहा है और वो भी स्टेशनरी नहीं है, इसलिए ये सब चेंज होता रहता है। सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, बहुत दूर हैं, दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, इसलिए वो हमें एक पॉइंट साइज सोर्स के रूप में, लाइट के सोर्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, जो पाथ है उसका स्टार से जो लाइट आ रही है वो थोड़ा थोड़ा मूव करता ही रहता है। That is why the apparent position of the star fluctuates and the amount of light entering our eyes flickers. The star sometimes appear brighter and at the same other time fainter, which gives the twinkling effect. इससे क्या होगा कि एक बार जो है लाइट हमें ज़्यादा एंटर करती हुई फील होगी, दूसरे टाइम में क्या होगा कम एंटर करती हुई फील होगी, इससे हमें जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करता हुआ फील होता है। चलिए नेक्स्ट, वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। अब प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइट जो है कंटिन्यूअसली हमारे आंखों तक पहुंच रही है, वाई इट इज सो। तो यहाँ देखिए, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, देखिए जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक हैं देन दैट ऑफ द स्टार, एंड आर द सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स। सिंस इट इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल सोर्सेज विल एवरेज आउट टू जीरो, देयरबाय नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट्स। क्या होता है, जो पॉइंट साइज से जो सोर्स हैं उसकी बजाय इनका जो टोटल वेरिएशन है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए उसकी जो ट्विंकलिंग जो इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पर शो नहीं होते हैं डिस्टेंस की वजह से। ठीक है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, हाँ ये भी होता है, हमें कुछ टाइम का एक डिफरेंस होता है, दैट इज 2 मिनट्स। ऐसा है कि सन जो है एक्चुअली में सनराइज होने से 2 मिनट पहले हमें दिखना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। दिख रहा है आपको, रियल पोजीशन यहाँ है, इससे आने वाली जो रे है वो जैसे ही एयर में एंटर करती है, एनवायरनमेंट में एंटर करती है, ये इसके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और बेंड होती है तो फिर हमें ये कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, हमें यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। दैट इज वाई हमें ये 2 मिनट पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। और इन द सेम केस इवनिंग टाइम में जब सनसेट होता है तो क्या होता है, 2 मिनट बाद तक वो हमें दिखाई देता रहता है। जब सन यहाँ पहुंच जाता है तब भी उसके रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से वो हमें दिखाई देता रहता है। सो दिन का जो टाइम है इस रिफ्रैक्शन की वजह से 4 मिनट से बढ़ जाता है। ठीक है, फिर से देखो इसको कैसे समझेंगे हम। ये सनसेट की टाइम है और ये सनराइज के समय की बात। एक्चुअली में सनसेट यहाँ पे हो जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ये यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें भी
फील होता है कि सनसेट हो गया है। यहाँ पर पहुंच जाता है तो हमें इसकी अपेरेंट पोजीशन यहाँ दिखाई देती है सनसेट टाइम, और सनराइज में जब ये यहाँ होता है तब ये पोजीशन यहाँ पे ही है, तब हमें यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है। तो इससे हमारा जो दिन का टाइम है वो 4 मिनट्स बढ़ जाता है, लाइट टाइम 4 मिनट्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट जो है कैसे स्कैटर हो जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, जैसे किसी कमरे में आपने लाइट नहीं जला रखी है, लेकिन आप बाहर गेट से बाहर लाइट जलाते हैं, लाइट की रे जो है डायरेक्टली आपके रूम में एंटर नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके रूम में थोड़ी सी लाइट है, आपको चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मीन्स जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। और इस रिफ्लेक्शन की वजह से सम ऑफ द लाइट रेज या उनका पार्ट बहुत कम जो है वो आपके रूम में भी पहुंच जाएगा, जिसमें आपने लाइट सोर्स नहीं लगा रखा है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा रोशनी जैसा फील होता है ना। ये किस वजह से है? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कभी जल्दी मॉर्निंग में आप उठे हैं तो आप देखना, मॉर्निंग में ईस्ट साइड में देखना, आपको दिखाई देगा सनराइज हुआ नहीं है, उससे पहले ही एक अलग रोशनी आपको शो होती है, जबकि सन नहीं है वहां पर। ऐसा क्यों? ये भी किसकी वजह से है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजिनस मिक्सचर, ये ध्यान रखना, होमोजेनस और हेट्रोजिनस लास्ट ईयर हमने पढ़े, ऑफ मिनट पार्टिकल्स। These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust, and molecules of air. ठीक है, इसमें इतनी चीजें मिक्स रहती हैं, that is why it is called heterogeneous mixture. When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. जब लाइट इन फाइन पार्टिकल्स के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो लाइट जो ये पार्टिकल्स हैं वहां से लाइट जो है स्कैटरिंग होती है, और दैट इज वाई द पाथ जो है बीम के ऊपर जो पाथ है वो बीम की तरह हमें विजिबल होता है। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूज्डली बाय दीज पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के थ्रू जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड होकर के डिफ्यूज तरीके से हमारी आंखों तक पहुंचती है। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल्स और पार्टिकल्स गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट। और इससे क्या डेवलप होता है? टिंडल इफेक्ट डेवलप होता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। इन दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। ऐसा होता है हमारे रूम में, एक मान लो कोई छोटी विंडो है जो ऊंचाई पर है, जैसे आप स्कूल में देखते हो रूम में, वहां से जो लाइट आती है तो लाइट के रास्ते में जब अगर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आते हैं तो वो एक शाइनिंग के साथ हमें दिखाई देते हैं, और वही क्या है? हमारा टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अगर किसी रूम में स्मोक भर दी जाए और एक पतला होल वहां बनाकर उसमें से लाइट एंटर करवाई जाए तो वहां पे टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छे से शो होगा। इन दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। और इससे होगा क्या? जो लाइट स्कैटर हो रही है उसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं विजिबल होते हैं और वो इधर से उधर डांसिंग करते हुए फील होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सीन व्हेन सनलाइट पासेज थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। इन दिस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाया था, सनलाइट जब डेंस फॉरेस्ट में से भी निकलती है तो वहां भी उसका यही इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट वहां पे भी शो होता है। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि लाइट किस कलर की हमें दिखाई देगी। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, while particles of large size scatter light of longer wavelengths। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो कौन सी लाइट को करते, स्कैटर करते हैं? ओनली ब्लू लाइट को, है ना। फाइन पार्टिकल्स यानी बहुत पतले साइज के, बहुत छोटे साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर
the color of the sky is blue. If the size of scattering particles is large enough, then the scattered light may even appear white. अगर उनका साइज बड़ा है तो लाइट कैसे शो होगी, हमें व्हाइट कलर की शो होगी. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू ए डायग्राम. तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक लेंस हमने रख दिया है, दूसरा लेंस इधर रखा है और बीच में हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रखा और इसमें सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन भी इसमें डाल दिया है. अब क्या होगा कि यहाँ से जब लाइट एंटर करती है तो लाइट बीम यहाँ पहुँचता है L2 पर और L2 पर पहुँचकर स्क्रीन पर हमें डॉट साइज इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसका इमेज मिलती है. ठीक है. इन द सेम वे, और देखो आपको एक डायग्राम और दिखाते हैं. ये टॉर्च है, हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया, ट्रू सॉल्यूशन जो है कोलाइडल इफेक्ट को शो नहीं करता, लेकिन जो ये टिंडल इफेक्ट शो करने वाले सॉल्यूशंस हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं. तो यहाँ पे देखो लाइट बीम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई लाइट बीम शो नहीं हो रहा है. दिख रहा है ये लाइट बीम यहाँ पर आपको, और यहाँ पर ये लाइट बीम शो नहीं हो रहा है. इन द अदर वे, यहाँ देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट. यहाँ अगर किसी जंगल की बात करें हम, तो वहाँ पर बहुत से वाटर ड्रॉपलेट्स तो हैं ही, इसके अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और उनकी वजह से जो लाइट आ रही है वो जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, और इस वजह से उनका जो रास्ता है, लाइट वेव जो आ रही है वो स्कैटर करती है, वो शाइनिंग करती है. ठीक है ना. इसी टाइप से यहाँ देखिए जब बादल होते हैं तो बादल के पीछे से जब लाइट आती है तो वो भी इसी तरह से स्कैटर होकर हमारी आंखों तक पहुँचती है. देन वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, हम पहले मैं बता चुका हूँ और एक बार फिर से दम समझ लिए इसको. ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट. ये क्यों होता है ऐसा, समझिए बात को. मॉर्निंग में जब सनराइज होता है तो देखो यहाँ तक लाइट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर करनी पड़ती है. दिख रही है ना, ये डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक, है ना. लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये दोपहर की जो डिस्टेंस है या बाद की जो डिस्टेंस है वो है कम. तो ज़्यादा डिस्टेंस को जब कवर करके आएगा तो उस समय क्या होगा कि रेड कलर हमें शो होता है, और जब डिस्टेंस कम हो जाती है तो रिफ्रैक्शन कम हो जाता है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है यहाँ पे ब्लू कलर जो वही शो करते हैं. ठीक है ना. इसको और समझ लीजिए. The molecules of the atmosphere and other particles that are smaller than the longest wavelength of visible light are more effective in scattering light of shorter wavelengths than light of longer wavelengths. The amount of scattering is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ के देखिए आप यहाँ पे कि जब छोटे पार्टिकल्स से लाइट जो है स्कैटर होगी तो ब्लू कलर को स्कैटर करती है, और जब बड़े पार्टिकल से स्कैटर होती है तो रेड कलर को करती है या वाइट कलर को करती है. ठीक है ना. लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजन पासेज थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. समझ रहे ना. यहाँ हमने देखा जब होरिजन के टाइम यहाँ थिक जो लेयर हैं उनको पास करके लाइट आप तक पहुंचनी है. ठीक. सो फिर से मैं पढ़ता हूं. लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन passes through thicker layers of air and a greater distance in the earth's atmosphere than the light received when the sun is overhead. जब सन जो है हमारे सिर के ऊपर होता है उसकी कंपेयर में मॉर्निंग में जो सन है वो उसकी लाइट को ज़्यादा थिकर लेयर को क्रॉस करना पड़ता है. द कॉरस्पॉन्डिंगली greater scattering of short wavelengths accounts for the reddish appearance of the sun at rising and at setting. तो राइजिंग के टाइम और सेटिंग के टाइम जो होता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो शॉर्ट वेव लेंथ को क्या करते हैं, इंसिडेंट जो लाइट हो रही है उसको क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे. ठीक है. दैट इज वाई वो रेडिश कलर शो करती है.
When looking at the sky in a direction away from the sun, जब आप सन से दूसरी साइड में देखेंगे, we receive scattered sunlight in which short wavelengths predominate, giving the sky its characteristics bluish color. और जब सन से दूसरी साइड में हम देखते हैं तो वहाँ फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो सनलाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं और इस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो स्काई है उसका कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है। सो ये था आपका, हमने पढ़ा लाइट का ह्यूमन आइज के बारे में, और इसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म, देन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, क्यों कैसे बनता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा, इसके बाद पढ़ा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और फिर उसके बाद हॉरिजन, और हॉरिजन से पहले और बाद में जो सन का अपीयर होना, और डे टाइम को 2+2 मीन्स 4 मिनट्स उसका इंक्रीज हो जाना। इसके अलावा टिंडल इफेक्ट का शो करना, ये हमने देखा, टिंडल इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। इसके अलावा ब्लूइश कलर क्यों होता है स्काई का और रेडिश कलर क्यों होता है वो हमने देखा। सो ये इस लेसन में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप इसको एक बार फिर से देखें, समझें और अपनी तैयारी रखें। दैट्स ऑल, बाय।